Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 8, General Proper. We study different subsidiary books in the chapter on subsidiary books. The General Proper is also a type of subsidiary books. General Proper is kept in order to record those transactions which cannot be recorded in in purchase book, in sales book, purchase return book, sales return book, cash book, petty cash book, bill receivable or bill payables book. These are the our subsidiary books, but uh, we cannot write these any transactions in these subsidiary books. That time we have recorded those transactions in our proper general या general proper. For example, furniture sold to पार्थिव फॉर ₹5,000. इट मीन्स यहाँ पे हमने पार्थिव को 5,000 रुपीज का फर्नीचर क्रेडिट पे दिया है. तो ये ट्रांजेक्शन मैंने जो भी कहे वो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता. वो परचेज की सब्सिडरी बुक्स हो या सेल्स की हो या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश हो, पेटी कैश हो, रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हो या बिल पेएबल, किसी भी बुक में आता नहीं है. तो ये खास एक ट्रांजेक्शन हो गया ना. तो खास ट्रांजेक्शन हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. ओके, यानी कि दिस ट्रांजेक्शन इज टू बी क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्नीचर्स which is not recorded in any subsidiary books. Hence, such business transactions are recorded in general proper, which is the part of subsidiaries book. Let's see its meaning. So what is the meaning of general proper? General proper, it means the subsidiary books in which is the transactions which are not recorded in any other subsidiary books are recorded is known as general proper. यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स कहीं किसी और सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखे जाते और इसी बुक में लिखे जाते उसे हम जनरल प्रॉपर, उस सब्सिडरी बुक को हम जनरल प्रॉपर कहते हैं. यानी कि जनरल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स. वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होती. वो वेरी स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए ही है. कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन हो वही हम इस जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. यानी कि द फॉर्मेट ऑफ द जनरल प्रॉपर इज द सेम ऑफ द फॉर्मेट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज. यानी कि जनरल प्रॉपर का जो स्पेसिमेंस है वह सेम जनरल का जैसे ही है. बिकॉज ऑफ हियर बोथ आर जनरल, हमें यहाँ पे दोनों की जनरल राइट करनी है, यानी कि जनरल एंट्री राइट करनी है. ओके, इट हैज 5 columns which are date, particulars, LF यानी कि लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. लेट्स सी its specimen. See, this is the specimens of general proper. First we write down as like general's book, जनरल प्रॉपर ऑफ श्री. जिसकी भी हम राइट करते हैं उसका नेम राइट करना पड़ेगा. यहाँ पे ट्रेडर्स का नेम हम राइट करते हैं. ओके, एंड लाइक जनरल्स के जैसे ही यहाँ पे 5 कॉलम्स आते हैं विच आर द डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, LF मीन्स लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज. ओके, these are the form like a general. Okay, there is write down in date column we write down the particular date that date this transaction doing. ओके, जो जिस दिन पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी हम यहाँ पे डेट राइट करेंगे. देन पर्टिकुलर में जिसकी जनरल एंट्री और शॉर्ट नरेशन राइट करेंगे. देन LF नंबर दिया हो तो लिखेंगे. देन डेबिट अमाउंट राइट करेंगे और क्रेडिट की कॉलम में क्रेडिट अमाउंट राइट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ transactions recorded in the general proper. It means which are transactions we recorded in our general proper. So here first one is given opening entries, then second one is given transactions not included in other subsidiaries book, third one is transactions of
inter account transfer, fourth one is closing entry, fifth one is adjustment entry, and then last sixth one is rectification entry. These are the transactions we recorded in our general proper. Okay, let's see one by one. We discuss about this entry. Let's see first opening entries. Opening entry, it means when a person started his business, he brings in personal assets into the business which is recorded in the जनरल प्रॉपर. यानी कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपनी पर्सनल असेट्स ला के बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसे जनरल प्रॉपर कहते हैं, क्योंकि ये इसकी जनरल एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करते हैं, ये किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखी जाती. लाइक एग्जाम्पल, वाई स्टार्टिंग द बिजनेस वीरेंद्र ब्रॉट कैश रुपीज 15,000, furniture of rupees 10,000, stocks of goods of rupees 8,000, and personal creditors of rupees 5,000 into business. So let's see how to write this general entry. तो इसकी जनरल एंट्री हम अपने जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. तो पहले हम हेडिंग राइट करेंगे कि जनरल प्रॉपर ऑफ श्री वीरेंद्र, यानी कि हम वीरेंद्र की बुक्स में ये जनरल प्रॉपर राइट कर रहे हैं. ओके, so there is write down 5 column, date, particular, LF number, and debit rupees, credit rupees. Okay, so its general entry like this. Furniture, it is our asset, so debit. Then stocks of goods also our assets, so debits, and debtors, it is our dues yani our assets. Okay, our current assets, so it is also debit. Then after creditors, it is our liabilities. Liabilities is our credit. Okay, then the remaining figure is our called capital. So its general entry like this: furniture account debit 10,000 rupees, stocks of goods account debit 8,000 rupees, debtors account debit 3,000 rupees, to creditors account 5,000 rupees. क्रेडिट की कॉलम में हम राइट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, जो रिमेनिंग फिगर्स है वो 16,000 रुपीज. ओके, और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग फर्नीचर, स्टॉक्स ऑफ गुड्स, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स ब्रॉट एज अ कैपिटल ऑन स्टार्टिंग बिजनेस. यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब हम ये सब चीज लाके हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी जो जनरल एंट्री हमने राइट की वो जनरल प्रॉपर में की जा सकती है. ओके, क्योंकि अभी तो कोई सब्सिडरी बुक्स में ये एंट्री हम नहीं कर सकते. नाउ नंबर 2, ट्रांजेक्शंस नॉट इंक्लूडिंग इन अदर सब्सिडरी बुक्स. यानी कि कोई अदर सब्सिडरी बुक्स में हम जो ट्रांजेक्शन नहीं लिख सकते वो सारे ट्रांजेक्शन हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. ओके, इट मीन्स यहाँ पे हमने 3 टाइप्स की, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं वजह की सब्सिडरी बुक्स में. हम सब्सिडरी बुक्स में राइट करने होते हैं वो ट्रांजेक्शन हम कहाँ पे राइट करते हैं, जनरल प्रॉपर. तो वो कौन से टाइप्स है, कौन सी कैटेगरीज है. तो पहली कैटेगरीज है कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ऑफ एन असेट्स एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन इट्स सेल्स. यानी कि कोई क्रेडिट परचेज हो या कोई क्रेडिट सेल्स हो बट वो असेट्स का हो, तो वो हम कोई सब्सिडरी परचेज बुक में या सेल्स बुक में नहीं राइट करते, वो हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं क्योंकि ये असेट्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है. ओके, और उसके बेचने पर, कोई असेट्स बेचने पर हमें लॉस या प्रॉफिट हुआ हो तो वो ट्रांजेक्शन्स भी हम जनरल प्रॉपर में ही राइट करते हैं. ओके, देन बी है कि ट्रांजेक्शन्स फॉर विच सब्सिडरी बुक्स आर नॉट केप्ट. यानी कि हम कोई ऐसी सब्सिडरी बुक्स है जो हम नहीं रखते हैं, तो उसके जो सारे ट्रांजेक्शन है वो हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. यानी कि मेनी टाइम्स when the proportions of a certain types of transactions is very less, a separate subsidiary books is not kept for them. हम उसके लिए सेपरेट सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते. तो such transactions are recorded in the general proper. like हम बिल रिसीवेबल्स सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते हैं, तो इन दिस सिचुएशंस बिल रिसीवेबल के सब जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो हम
जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. ओके. देन आफ्टर द थर्ड नंबर, स्पेशल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स. यानी कि सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक, सो दे आर recorded in the general proper. Like one is goods given in charity, goods given in sample, goods given as a uh, personal use. Okay, यानी कि goods taken for personal use. Then dishonor of our bill, bad debts reserve. Then endorsements of bill receivables, loss of goods due to fire, due to rain, due to accident, due to theft, depreciations. These are transactions we recorded in our general proper. Okay. So ये सारे ट्रांजेक्शन हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. Then next number 3, transactions of inter-account transfer. Transactions of inter-account transfer, it means that sometimes due to some reasons the amount is to be transferred from the one account to another accounts, either partly or fully. यानी कि पूरे की पूरी या थोड़ी सी हमें कोई अकाउंट की अमाउंट किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करनी है तो हम वो जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. यानी कि such transfers is recorded in the general proper. In the same way, when an account is closed at the end of the year and transferred to another account, the transfer entry is passed in general proper. यानी कि हम कोई क्लोजिंग अकाउंट भी की एंट्री करते तो वो भी हम जनरल प्रॉपर में ही करते हैं. जैसे कि हमने गुड्स ऑफ स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री राइट करनी है तो क्या करेंगे, तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ओके. और किसी मान लो कि जैसे कि ₹5,000 पेबल टू आकाश इज एक्सेप्टेड बाय धरती टू पे, यानी कि आकाश को पे करने थे पर धरती ने एक्सेप्ट किया कि ओके मैं पे कर दूंगी आकाश के बदले, तो उसकी जनरल एंट्री हम जनरल प्रॉपर में राइट करेंगे. ओके. कि आकाश अकाउंट डेबिट टू दृष्टि अकाउंट. ओके. और कोई भी अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री भी. Then number 4, closing entry. Closing entry means entry given in the end of the accounting year to close various accounts. यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो अकाउंट्स हमारे लेजर में थे वो सारे हमने क्लोज करके किसी और अकाउंट में ले जाने हैं तो उसकी क्लोजिंग एंट्री भी हम क्या करते हैं, जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. ओके. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंट्स ऑफ इनकम, accounts of expense, accounts of goods, etc. are closed and transferred to trading or profit loss account. Okay, these entries for closing various accounts are known as the closing entry. All the types of closing entries are recorded in the general proper. It means कि सारी closing entry हम जनरल प्रॉपर में ही राइट करते हैं. लाइक एग्जाम्पल, at the end of the year the balance of purchase account is 1 lakh, balance of sales account is 1,20,000, etc. We closed and transferred to our profit loss account या our trading account. Okay. So this and for this entry we recorded in our general proper. Okay. Then number 5, adjustments entry. Adjustments entry means at the end of the every accounting year, entries are to be passed to certain adjustments so that the true performance and the true financial position of the business can be known. And without adjustment entry, we can't know our financial position or financial condition in the market, yeah, our true performance. Okay, we have uh, going on good performance, yeah, we have not. Okay. So that's a एडजस्टमेंट एंट्री से हम अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जान सकते हैं. और लाइक जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो या अनपेड एक्सपेंस हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, नॉट इनकम नॉट रिसीव्ड हो या इनकम प्रिपेयर्ड हो रिसीव्ड हो, हमें इनकम प्री रिसीव हुई हो या
depreciation, so etc transactions it is related to adjustments entry. ओके, इस सारे जो अकाउंट्स है उससे जुड़े जो एडजस्टमेंट्स है वो उसकी एंट्री हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं। नाउ नंबर 6, rectification entries. Entries plaster to rectify the errors committed while recording economic transactions are called as rectification of errors. यानी कि हम जब भी अकाउंट राइट करते हैं तब कोई ट्रांजेक्शन जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो लिखने में हमारे से गलती हो जाए और उस गलती को रिपेयर करने के लिए हम जो एंट्री राइट करते हैं वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहते हैं और ऐसी एंट्री हम जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं। ओके, यानी कि many transactions take place in a business during an accounting years and are recorded in the books of accounts. There are chances for erroring being committed while making such records. For certain types of errors, general entries are to be passed for rectification, and such entries for the rectification of error are recorded in the general प्रॉपर। ओके, यानी कि हम जो जनरल प्रॉपर में हम जो जनरल राइट करते थे या हमारा अकाउंट बनाते थे उससे जो भी हमसे गलती हुई वो हम इरेज नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, तो उसकी ऑपोजिट एंट्री देके हम उसे सुधार सकते हैं, यानी कि हम रेक्टिफिकेशन एंट्री राइट करते हैं। तो ये सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम जनरल प्रॉपर में ही राइट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, लाइक दिस हियर हमने एक एग्जांपल लिया कि द परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2000 इज रिकॉर्डेड एज अ परचेज ऑफ गुड्स। हमने असेट्स परचेज की है पर उसकी रिकॉर्डिंग हमने गुड्स में राइट कर दे तो वो तो गलत है ना, गुड्स में हमें राइट नहीं करनी चाहिए, हमें तो कहाँ पे राइट करनी थी, फर्नीचर मशीनरीज में। सो इसकी हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री राइट करनी हो तो कैसे करें कि मशीनरीज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और हमारा जो गुड्स का परचेज का अकाउंट था वो क्रेडिट कर देंगे। ओके, सो it's a general entry like this: machineries account debit 2000 rupees to purchase account 2000 rupees, और राइट करेंगे हम नरेशन में। तो नरेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी एंट्री है। ओके, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीनरीज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। सो ऐसी जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी हम जनरल एंट्री कहाँ पे पास करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री उसकी हम जनरल प्रॉपर में पास करते हैं। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर सीखे, तो 6 सीखे। फर्स्ट वन था ओपनिंग एंट्री, सेकेंड वन था ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडिंग इन अदर सब्सिडरी बुक्स, थर्ड वन था ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर, देन फोर्थ नंबर क्लोजिंग एंट्री, देन फिफ्थ नंबर थी एडजस्टमेंट एंट्री, देन सिक्स में था लास्ट में रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इस सारे ट्रांजेक्शन की जो भी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।